मेरे सेशन में बसना चाहिए। ओके चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको, थोड़ा सा पढ़ेंगे आज होपफुली। हाँ हाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं, वैसे भी जितना समझ में आता रहे आसानी से उतना उतने पढ़ना चाहिए। ओके हमने बात की थी केमिकल कंपाउंड्स की दैट कैन बी यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द माइक्रोबियल ग्रोथ, और उसमें हमारे पास अल्कोहल्स, पैरासिटिक एसिड्स, इसके अलावा एल्डिहाइड्स, फॉर्मल्डिहाइड, बुटाल्डिहाइड और कुछ और एग्जांपल्स बिगेनाइट्स फॉर एग्जांपल। फिर हमने पैरासिटिक एसिड्स पढ़ा, इनके मोड ऑफ एक्शन भी पढ़े, इनकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में जिक्र किया, इनके कुछ एडवांटेजेस पे जिक्र किया, फिर इनके एप्लीकेशन पे जिक्र किया। फिर हमने देखा कि भाई वी नीड टू प्रेफर फ्यू ऑफ देम इफ यू वांट, और फिर हमने फिनोलिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा पढ़ा था कि फिनोलिक कंपाउंड्स दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ phenols and the carbolic acids, but they have unpleasant odor and normally they irritates the skin. और इसको अगर हम मजीद एक्सटेंड करें तो इसमें जो मोड ऑफ एक्शन था that was to destroy the cytoplasmic membrane of the microorganisms and to denature the protein। और फिर इसके साथ साथ हम अगर इसको मजीद देखें तो इसका जो स्पेक्ट्रम है, the spectrum of the phenolics that is to kill the vegetative bacteria only, they are unable to kill the endospores, और the vegetative bacteria को ये काफी high concentration में kill करते हैं। High concentration means the concentration that is actually 5% to 19% in case of the vegetative bacteria. In case of phenol, if we want them to use against the vegetative bacteria. But the good thing is that these phenolics, they are able to kill the Mycobacterium tuberculosis, and Mycobacterium tuberculosis kill करने के साथ साथ they are also able to inactivate all the viruses. Unfortunately, they are not able to kill the viruses, but they are only able to inactivate the viruses, and they also leave an active antimicrobial residue. और इसका ये हमारे पास side effect है कि when we use the phenolics on some surfaces, they leave the active antimicrobial residue. This is the side effect of it. So we discourage the use of phenolics in where we do not want any active antimicrobial residue. इसके अलावा जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड्स की बात आएगी, ट्राइक्लोसान एंड हेक्साक्लोरोफीन की, they are non-toxic and they can be used in the soaps
and lotions and some other personal care products जिनका इस्तेमाल है जिनमें हम एंटीबायोटिक करेक्टरिस्टिक्स भी इंड्यूस करवाना चाहते हैं। इसके अलावा जो हेक्साक्लोरोक्विन है that is very effective against the Staphylococcus aureus. And you know that Staphylococcus aureus, they are the skin pathogens, and they are involved in the skin infection. Or normally when there is a wound on skin, तो उसमें wound infection में Staph aureus का काफी रोल होता है. So in that case, you can say that this hexachloroquine they can be used to cure the wound infection. And but it should be its usage should be of high care because the high concentration of the hydrochloroquine that may cause a neurotoxicity और इसलिए हम इसकी high concentration इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा they can be used as a antiseptic skin cleansers के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं hydrochloroquine, and now these cleansers are very much common, but they are available only with the doctor's prescription, and the hydrochloroquine that is the active compound in the cleansers as well. इसके बाद अगर हम बात करें क्वार्ट्स की या क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स की, इसके बारे में हम एक दफा सरसरी सा पढ़ चुके हैं, कुछ जिक्र हुआ था क्वार्ट्स के बारे में. These are quaternary ammonium compounds, and when we talk about the quaternary ammonium compounds, they are cationic in nature, they are positive in nature, and once we discussed in the class that there is a negative charge on the surface of the microorganisms. So when we treat the microorganisms with these positively charged cations, they will bind with the microorganisms, and easily they will disrupt and destroy the cellular membrane of the microorganisms, being as a detergent. So these are quaternary ammonium compounds, these are the detergents normally. So they can be used to disinfect the surfaces on which we prepare the food. The food preparation surfaces को disinfect करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं. इसके अलावा जो क्वार्ट्स हैं इसमें दो पोर्शन होते हैं, हाइड्रोफिलिक पोर्शन और हाइड्रोफोबिक रीजन. The hydrophilic region है that is the charge, and the hydrophobic that is the uncharged. और ये बहुत सारे लिक्विड्स के सरफेस टेंशन को भी रिड्यूस करने में इस्तेमाल होता है because that is a detergent. और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो it has ability to react with the membranes because membranes are made up of lipid bilayer, and this is a detergent, so it can react easily with the membranes, and it can destroy the vegetative bacteria and some other enveloped viruses. And we have discussed it that enveloped viruses are the easy target as compared to the non-enveloped, because enveloped viruses they contain the envelope of the host cell, and we are familiar with its composition. इसके साथ अगर हम देखें इसका यूज, तो हम नॉर्मली क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, और दैट इज वेरी मच कॉमन यूज. इसके बाद अगला आता है द प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स. पेरिशेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जी? जॉन क्या होते हैं पेरिशेबल? एनी आइडिया ऑफ सम perishable products? Kuch by anyone from the online, what are the perishable products? Anyone from the online, do you hear us? मेरी आवाज आ रही है? जी सर. Good. So perishable products क्या हो सकती हैं? मेरा सवाल ये है, ये common English का word है. I think you guys should be familiar with it. Perish, the product, the food product that is a perished that is we are unable to use it. Perishable products. No, perishable. जो खराब हुई हो चीजें खराब नहीं होती हैं, हो जाती हैं. यस, उलट बता दिया आई थिंक तुमने. likely to decay. Okay, I think Google helped. Yes, you are right, Busha, and this is the right answer. And perishable products are the decayable. So there is a challenge to protect the growth of microorganisms in the products which are perishable, because a lot of food products that can perish. और अगर हम microbial food spoilage की बात करें तो
शायद 25% जो फूड स्पॉइलेज है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ करता है. So we can control the growth of microorganisms. We can protect the products, and we can say we can protect the products from decay actually. और साथ ही साथ अगर हम इसमें देखेंगे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हम किस तरह से बचा सकते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं. पर्पस ये है कि यू हैव टू रिड्यूस एंड यू हैव टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए वी कैन यूज द टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन को चेंज कर सकते हैं. लो टेम्परेचर हो सकता है या फ्रीजिंग टेम्परेचर, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम कर सकते हैं. इसके अलावा द मेन टास्क कुड बी to reduce the available water, which is the water will be reduced, the microbial growth will halt. And ये ज़्यादातर यही हम मेथड यूज करते हैं. और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रिड्यूस वाटर रिडक्शन के केस में लाइफोलाइजेशन का जिक्र हमने किया था कि when we suck out the water, available water, और इसके अलावा हमने रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग की बात की थी. एक्चुअली फ्रीजिंग में हम ये कह रहे हैं कि अवेलेबल वाटर है उसको हम फ्रीज कर रहे हैं और एंजाइमेटिक मशीनरी हॉल्ट हो रही है ड्यू टू द अनफेवरेबल टेम्परेचर, और इसके रिजल्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ स्लो डाउन या स्टॉप हो रही है. तो ये इसके साथ साथ इसमें हमारे पास लाइफोलाइजेशन का प्रोसेस आएगा और उसमें हमारे पास जनाब कुछ और केमिकल्स जैसे कि बेंजोइक एसिड हैं, सॉर्बिक एसिड हैं, प्रोपाइनिक एसिड हैं. These are the weak acids actually, and they may be added to the food to reduce the pH, and the reduction in the pH would be inhibited to the growth of the microorganism, and it will prevent the microbial growth. And benzoic acid, sorbic, propionic acid, they can be added to the bread, cheese, and some other juices. और इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद इसको देखें तो इसमें हमारे पास जो फ्रीजिंग में हम उसकी लो टेम्परेचर पे फ्रीजिंग, लेकिन फ्रीजिंग में हमारे पास साइड इफेक्ट आता है ice crystal formation का, and we have to avoid the ice crystals formation because that can rupture the food components as well. लेकिन फ्रीजिंग का जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी यही है कि वो आइस क्रिस्टल बनाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग होती है. इसके साथ लाइफोलाइजेशन में हम उसको प्रोडक्ट हम लाइफोलाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं. प्रोडक्ट को हम ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद हम उसको स्टोर कर सकते हैं. इसके अलावा the usage of salt and sugar, that may also be salt and sugar की हाई कंसंट्रेशन इस्तेमाल की जा सकती है, जैसा कि हम बहुत पहले ज़माने से करते आ रहे हैं. the formation of pickle, jam, jelly, etc., in which we add the high concentration of salt and the sugar. When we add the high concentration of salt and sugar, it will extract out the water. The salt will extract out the water that is present in the vegetables and the fruits. और फिर उसके केस में होगा क्या कि ब्राइन बनेगा. What is brine? Brine. What is brine? There is salt water in which salt is in high concentration. तो अगर हम इसमें हम जब बात करते हैं वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए we add the high concentration of salt on it, and water release हुआ करता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास ब्राइन बनता है. ब्राइन is inhibited to the growth of certain microorganisms. सिर्फ वही microorganisms grow कर सकेंगे which are highly tolerant, and most of the pathogens they are unable to grow in the brine conditions. कुछ फंगस स्पीशीज हैं जो ग्रो करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म वो हम रिड्यूस डाउन कर सकेंगे इसी ग्रोथ में. तो ये एक्चुअली द प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स था, उसमें हम काम कर सकते हैं इसको. बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ें जो थी हम कल वाली क्लास में बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइड डिस्कस कर चुके हैं. So this was about this chapter, and we have completed this chapter. And if you guys have any question from this session and the previous session, you may ask. अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ. The next chapter that we will start today, this is about हाँ ये वाला. ठीक है, तो क्विज होगा ट्यूसडे को, वेडनेसडे क्विज होगा वेडनेसडे को. इवन और का कंबाइन ऑनलाइन क्विज ले लेंगे, लिमिटेड टाइम दे देंगे, आप अच्छा से कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से करने की. कौन है इसी क्लास में है? मुझे मेरे ज़हन में कुछ ऐसा है जैसे ज़हन, पता नहीं मुझे ज़हन कभी आया नहीं आपकी क्लास.
स्टार्ट में आया और ये भी कम आया तो इसलिए मैं कंफ्यूज। एनीवेज, अच्छा, उसमें आई सपोज कि आप अपनी मॉरल और एथिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग खुद से कर लेंगे। रिजवान तुम्हारा नाम होगा और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। एनीवेज, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्विज बाय योरसेल्फ। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। मिड्स कब से हैं आपके? आई थिंक इन द नाइन्थ वीक, सेवंथ हो गया, एट और नाइन्थ। चलें मिड्स का देखते हैं क्या पॉलिसी आती है, मिड्स जो भी आएगी। सो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, आपने लास्ट सेमेस्टर के पेपर दिए हैं ऑनलाइन, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? तुम तो थे ही ना, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? Okay, next. So identification and classification of microorganisms, that is our next chapter. Or actually, there are a lot of microorganisms that are being discovered. और हमने पढ़ा था कि हम शायद thousands of species हैं discover कर चुके हैं, but we believe there are millions and maybe billions of the species that are undiscovered. और जैसे जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं, so they to classify the microorganisms because we cannot leave them unclassified. और classification करनी है. So this chapter would be from the taxonomic point of view. This chapter is important. This relates to the taxonomy and different taxonomic principles. तो अगर हम इसमें बात स्टार्ट करें तो there are certain classes, certain classification criteria or the grouping criteria. सवाल ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किन बेसिस पे किया जाए, क्लासिफाई किया जाए। उसमें बहुत सारे हमारे पास कुछ लॉजिक्स आते रहे और कैसे टाइम हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स बिल्ड होते रहे। उसमें सबसे पहले ये था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शेड्स को क्लासिफाई कर दिया जाए। एंड यू गाइस आर फैमिलियर विद इट, हाउ मेनी शेड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर जनरली? Bacillus, cocci, Spirillum, Vibrio, Bacilli, cocci, Spirillum, and Vibrio. Four. So there are only four categories, and this we have to categorize all the microorganisms. But this is certainly not reliable that the thousands and the hundreds of thousands microorganisms are being categorized into only four groups. तो ये बात suitable नहीं है. We need a large number of groups to categorize a huge data into them. So shape की base पे हम नहीं कर सकते. एक बात, दूसरी बात ये कि shape दो organisms की similar हो सकती है और उनकी other characteristics they may differ. So we have to categorize accordingly. It is not possible that the shape की base पे categorize करवा दें, बाकी characteristics हैं वो 180 के angle पर different. Would it make more sense to group them according to their motility? फिर अगला हमारे पास आइडिया ये है कि क्या हम उसको मोटिलिटी के बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। मोटिलिटी के बेस पे दो ग्रुप से बनेंगे, one will be the mobile and non-mobile. So this is also not possible. Number of groups we need to enhance and increase the number of groups that are not possible in case of the shape and in case of the motility. उसके बाद अगला आइडिया आता है, can we categorize according to medical significance? Either bacteria are medically significant enough, they are beneficial for human infection there or तो ऐसी केसों में हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स आ सकते हैं और हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स को इंक्रीज करना है। और अगर हम मेडिकली सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया को ही एक ग्रुप में रखेंगे तो इसमें जो अपीरेंटली आइडेंटिकल बैक्टीरिया हैं, द बैक्टीरिया व्हिच आर अपीरेंटली आइडेंटिकल, हो सकता है उनका डिजीज कॉजिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो। जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं उनका डिजीज कॉजिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो, और ये भी जरूरी नहीं है those same the bacteria are similar, the disease cause potential is similar. This is not possible. So it might possible that bacteria they are apparently different, but their disease causing potential is same. It might possible. So according to the medical significance, it was also not possible to categorize the microorganisms. So there are certain efforts, कुछ efforts की बात करते हैं that were there to classify the microorganisms. सबसे पहले Ferdinand Cohen he tried to classify the microorganisms on the basis of shape. Too many kinds of microorganism, but too few shapes are there.
इस वजह से this is not possible. Second attempt was performed by the Sager Paula Jensen, and he tried to categorize the microorganisms on the basis of physiological properties rather than the morphology. What are the physiological properties? Physiology. Physically, no. Functionally, yeah, functionally. Physiological properties के base पे he tried, but this is also not a good way to categorize a microorganism. Then Albert Pulweier and C.V. Van Nile, they tried to categorize the microorganisms on the basis of their evolutionary relationship. और यहाँ पे इन्होंने एक concept दिया and they distinguished between resemblance and relatedness. This is not necessarily that even there are two organisms they resemble, but जरूरी नहीं है कि वो related हो. वो रिजेंबल कर सकते हैं शेप में, मोटिलिटी में, maybe morphology में, but it is not necessary that they may be related. So relatedness is somehow different from the resemblance. So they distinguished between the relatedness and resemblance. So in 1970, Roger Stanier he tried to compare the gene products. और gene products क्या होती हैं? Gene products क्या है? What are the gene products? Proteins are the gene products. He tried to compare different gene products, and then he concluded that he assumed that microorganisms all are similar because they share the similar genetic makeup and not same. I'm using the word similar. They share similar genetic makeup and they encode similar products. So according to the gene products, he was unable to categorize. इसके अलावा फिर कुछ और फीचर्स पे बात हुई. The chemical nature of the cell wall, cell membrane. When we talk about the chemical nature of the cell wall, it is exactly like the difference between gram particle and cell wall is made up of petroglycan and cell जो gram negative was LPS के लिए. So chemical nature की base पे micro. इसके अलावा the ribosomal RNA. What is the ribosomal RNA? Ribosomal RNA. क्या होता है? कुछ है? I'm not sure, लेकिन transcription. No, ribosomal RNA. How many types of RNA are there actually? 3. Which one? कौन से? तीनों के फंक्शन में क्या डिफरेंस है? मैसेंजर, मैसेज, ट्रांसफर, राइबोसोमल. वाह जी वाह. अच्छा चलें. Normally when DNA transcribes the RNA, तो RNA की हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं usually. For example, this was the DNA. अगर मैं इसको DNA कहूँ, इसके बाद that would be transcribed into RNA, and this RNA would contain all the information according to which the protein would be translated. ऐसे ही है, इसमें information हमारे पास स्टोर है सारी. और यहाँ पे होगा क्या कि this RNA that will be termed as messenger RNA. You know the protein synthesis mechanism. इसमें होगा कि ribosome will attach here, and you know there are 2 subunits of the ribosome, smaller and larger, and these ribosomes, they are made up of protein plus RNA. तो जो ये RNA है इसको ribosomal RNA कहेंगे. इसके अलावा there is third RNA which will bring the amino acid into the ribosome, A site, P site, E site. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ ली ना? ऐसा नहीं पढ़ेंगे उसमें. तो ट्रांसफर RNA 3 टाइप. तो हम बात कर रहे हैं राइबोसोमल RNA. अब जब राइबोसोम की सब यूनिट की बात करें तो 2 सब यूनिट हैं, लार्जर एंड स्मॉलर. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम is of 70 S and S is what? Svedberg unit. स्मॉलर यूनिट जो है ये 50 S का है, और जो स्मॉलर जो है 30 S का है और लार्जर 50 S का है. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की अगर बात करें कंबाइन 70 S. अब इसमें मजीद क्या है कि ये जो स्मॉलर यूनिट है दैट इज मेड अप ऑफ RNA प्लस प्रोटीन.
और आरएनए इसमें 50s आरएनए होता है और साथ में प्रोटीन होती है। जो लार्जर है इसमें 16s है और प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है हमारा थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है इसमें। तो 16s के साथ एक आरएनए इसमें और भी होता है, आई थिंक दैट इज द 23 मे बी, or only 16s RNA. I will check it out and let you know. But this is the 16s RNA that is the constituent of the larger ribosomal subunit. ठीक, तो हम बात अभी इसकी कर रहे हैं राइबोसोमल सब यूनिट की। राइबोसोम में 16s राइबोसोमल सब यूनिट जो है that remain conserved during evolution. So by measuring the sequence of the 16s ribosomal subunit, we can identify the microorganisms. हो सकता है ऐसा रिजॉन? अच्छा, अब अगर हम इस पे बात करें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल we have an identified microorganism, this one, the bacteria A. इसकी हमारे पास ये सीक्वेंस मौजूद है, ये आरएनए का सीक्वेंस किसका 16s राइबोसोमल आरएनए का, और ये सीक्वेंस है AUGCGUC, और ये हमारे पास 3 अननोन है B, C एंड D, और इसके अगर हमने राइबोसोमल सीक्वेंसेस हमने लिए तो हम सीक्वेंस को अगर कंपेयर करें तो ये वाला जो सीक्वेंस है दैट इज अ बिट सिमिलर विद दिस वन. सो अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी एंड अकॉर्डिंग टू द yes the similarity in the ribosomal sequence, can we relate this one with this? So this is the way इस पे बात हो रही है. कार्ल बॉयज ने राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस को इस्तेमाल किया in the identification of the microorganism, and this is a very reliable method till date. Okay, got it? कोई सवाल, कोई मसला मसाइल तो नहीं है जी ख़वातीन और हज़रात? गुड. आगे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं टैक्सोनॉमी. व्हाट इज टैक्सोनॉमी? Taxonomy in which we science actually use, in which we classify, identify the microorganism and we give them the names, nomenclature. तो principles, 3 principles हैं taxonomy के: identification, classification and nomenclature. Identify जब तक organism को नहीं करेंगे उसको classify नहीं कर सकते. So identification it requires, classification it requires the identification. And when we will identification के बाद we will classify into specific genus, species, and when the organism will be there in the specific genus and species, तो हम उसको easily name, scientific name allot किया जा सकता है depending upon the genus and species. You know that scientific name consists of 2 parts, generic and specific name. अब इन्हीं तीनों प्रिंसिपल्स को हम सेपरेटली पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन की कुछ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल हो सकती हैं. आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्ट्रेटजीज कॉमन हैं इसमें सबसे पहले आती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, वी हैव एन अननोन बैक्टीरिया, so we would go for the microscopic examination of that bacteria. हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, उसकी ग्राम स्टैनिंग करते हैं, blah blah. Okay. Culture characteristics, we grow the bacteria into the lab. उसकी हम कल्चर, उसकी कॉलोनी की कलर क्या है, कॉलोनी की शेप क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, रफनेस है, स्टिकीनेस है, ओडोर क्या है, स्मेल उसकी पुंजेंट है नहीं है, किस टेम्परेचर पे ग्रो करता है. These are the culture characteristics of that unknown bacteria. And number 3, that is a biochemical test. Biochemical test that will be responsible to find out the biochemical composition of the cell constituents of that organism, cell wall की composition, cell membrane की, other enzymatic machinery that is present in it. हम biochemical composition की तरफ जाएंगे. फिर उसके बाद finally at the final step we can go for the nucleic acid analysis. This one, the RNA. nucleic acid analysis पे जा सकते हैं, उसकी DNA की sequencing की जा सकती है, DNA की sequences को complete किया जा सकता है. Got it? So these are the strategies that can be used to identify the microorganisms, and the admin starts from the microscopic examination. हम इस पे बात करेंगे, इन सब strategies पे हम separately बात करेंगे अलग अलग से. बायोकेमिकल टेस्ट का जी हाँ, बायोकेमिकल टेस्ट का मैं बता रहा हूँ. these are some tests which will determine the biochemical composition of the cell. कि cell wall constituents हैं, जैसे कि हम ग्राम स्टैनिंग करते हैं, ये फाइंड करने के लिए कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है. This is a very simple example. इसके बाद अलावा हम ये देखेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से एंजाइम्स मौजूद हैं. उसके लिए कैटालेस टेस्ट हो सकता है, जैसे हमने शेक ट्यूब मेथड में फाइंड आउट किया. इसमें सुपर ऑक्साइड
डिस्मूटेज था या कैटालेज था। तो कैटालेज टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। These are biochemical tests that can be used to identify the biochemical composition of the organism. So before starting it, we would go for the taxonomic hierarchies. You are very much familiar with these taxonomic hierarchies. They start from the species, genus, family, order, class, phyla, kingdom, and finally there are domains. And you know that there are 3 domains of the life. कौन-कौन सी पढ़ी हैं हमने? यूकेरिया, आर्किया हैं? यूकेरिया, आर्किया हैं? बैक्टीरिया, अभी तो इसी सेमेस्टर में पढ़े हैं जी। और ओके, when we define species in case of eukaryotes, how will we define a species in case of eukaryotes? Species की definition क्या है? What do you mean by that is named as a species? Name the genus. फिर से species किसी टाइप्स में आएगा। species को Sir, define कैसे? जी sir, sorry? group of similar organisms that can interbreed freely among themselves and can produce fertile offsprings. Yes, eukaryotes के case में will define it. He's right. The number of similar organisms that can interbreed and that can produce a fertile offspring. This would be fine for the eukaryotes. But in case of prokaryotes, we are not interested with the interbreeding and producing a fertile organism, because you know that in the case of prokaryotes, there is a binary fission normally. और so prokaryotes में species define होगी, this is a group of similar organisms that share some similar characteristics. और domain, characteristics of cell that make up an organism. तो domain actually characteristic of a cell define कर रही है, जैसे eukarya, जैसे eukaryotic cell, this is defining the characteristic of a cell that is making up life. prokaryotes में या bacteria में characteristics of cell है, archaea में characteristic of cell को define करें. So there are 3 domains of the life, और उनके नीचे हमारे पास kingdom, जो 5 kingdom system है अभी तक उसके according, ठीक है. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. This is the taxonomic rank of the E. coli, the most commonly used organism. And if you start from the domain, bacteria, phylum Proteobacteria, class Gamma Proteobacteria, order Enterobacteriales, family Enterobacteriaceae, genus Escherichia, and species the coli, Escherichia coli. Okay, hierarchies हैं इसकी, taxonomic hierarchies. उसके बाद आगे बात करते हैं जी बर्जीज मैनुअल की. अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में ना आया हो, कोई कंफ्यूजन है? गुड. सो जी ऑनलाइन किसी को कोई मसला जी? यस सर, वो पीछे जो राइबोसोम्स वगैरह में से थोड़ा सा क्वेश्चन था. हाँ कुछ सर, वो जो मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए में जब डीएनए से मैसेज बनना होता है जीन्स का, तो वो मैसेंजर आरएनए की तरफ से आता है. मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, तो वो राइबोसोम इसको रीड करता है, फिर ट्रांसफर आरएनए को भेजता है. जो ट्रांसफर आरएनए वो राइबोसोम बनाता है या मैसेंजर आरएनए को ही आगे ट्रांसफर करता है? आखिरी पोर्शन मिस हो गया, ये दोबारा पूछ लो. सर, जो ट्रांसफर आरएनए वो मैसेंजर आरएनए इटसेल्फ एक स्ट्रैंड क्रिएट करता है, या वो मैसेंजर राइबोसोम एक स्ट्रैंड क्रिएट करता है, या फिर वो मैसेंजर आरएनए को ही बनाकर आगे भेज देता है? नो. मैसेंजर आरएनए इज अ टेम्पलेट है जिसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स ऐड होने हैं. अमाइनो एसिड ऐड किसने करने हैं? अमाइनो एसिड ऐड करने हैं राइबोसोम ने. मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ. हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट का वो पार्ट नहीं है, बट स्टिल आई वांट यू टू क्लियर योर माइंड अबाउट इट. दिस वन, प्रोटीन ट्रांसलेशन. इसमें प्रोटीन ट्रांसलेशन में खातून कहाँ से आ गई? अच्छा, commercial. Okay, let me share with you guys this one. अयाज, वीडियो शेयर हो गई है? अच्छा जी, ये अयाज, अगर तुम यहाँ से कुछ इस तरह से देखो तो दिस वन इज द ट्रांसफर आरएनए हियर, और दिस इज द मैसेंजर आरएनए यहाँ पर, और ये 30s राइबोसोमल सब यूनिट आगे इसके साथ अटैच करेगा.
और ये जो लार्जर सब यूनिट है ये आके इसके साथ इस तरह से अटैच हो गया। ओके, हियर 50s ट्रांसफर आरएनए। अब इसके अंदर हमारे पास 3 साइट्स हुआ करती हैं, वन इज कॉल्ड ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। Creating transfer RNA carrying formal methionine. यस, ए साइट पे दूसरा ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड लेके आएगा, फिर ये 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा लाइक दिस हियर। पहले वाला ट्रांसफर आरएनए फ्री हो गया, नाउ दैट विल मूव टू द ई साइट, नेक्स्ट साइट जो यहाँ पे है लाइक दिस। और इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा लाइक दिस हियर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसेस दैट आर रिटन हियर इन द मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली कोडॉन और एंटी कोडॉन। और फिर जनाब हमारे पास ये फिर आगे मूव करेगा लाइक दिस, नए बॉन्ड बनेगा और उसके बाद दिस विल मूव आउट। इस तरह से हमारे पास पेप्टाइड चेन बन जाएगी। ओके, so this is the messenger RNA, now this is the transfer RNA, और जो ribosomal RNA that is present in the ribosomes. Okay, यस कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, हम तक आवाज नहीं आ रही, you can type. चलें जी, मैंने मॉलिक्यूलर पढ़ना शुरू कर दी साथ साथ ही। Ayaz, are you okay with it? Clear, sir. Thank God. Okay, guys, we will take 2 minutes break.
Okay guys, एक important announcement सुन लीजिएगा. We are interested to conduct a workshop on the end node. Not we are actually. मुझे किसी दोस्त ने ये बताया था. उनका कोई प्लान है. वो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से हैं. And he wanted to ये one day भी नहीं, शायद कोई 4-5 घंटे की होगी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप. एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज्ड टू साइट एंड ये बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस ऐड करने के. जब आप असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें आपने रेफरेंसेस किस तरह से देने हैं. आप बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैनुअल करते हैं. मैनुअल में बहुत सारे इश्यूज हैं. रेफरेंस चेंज करना, ऐड करना, पुट करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना. तो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड करता रहेगा जैसे जैसे आप उसको कमांड देते रहेंगे. So this is very necessary whenever you will be writing assignments. इसके अलावा थीसिस लिख रहे होंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है. तो वो प्लान कर रहे हैं. मैं उनसे ब्रोशर वगैरह ले लूँगा, मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ. इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा. अच्छा, आगे पढ़ने लगे हैं हम द बर्जीज मैनुअल. यस भाई, कल से वैसे आप लोगों को छुट्टियां हो रही हैं. आज तो थोड़ा सा पढ़ लें आप लोग. इतना अब सुबह उठ के मेहनत करके घर से आप आए हुए इतना सफर तय करके, तो इट लुक्स ऑकवर्ड. अब अब्दुल्ला बड़े दिनों के बाद आया है, मैं ना पढ़ाऊंगा. इट लुक्स ऑकवर्ड. नहीं पढ़ाना है ना पढ़ाना. तो वो इतने दूर से इतने दिनों के बाद उसने जहमत की आने की, तो मतलब ये तो बनता है आज पढ़ाना थोड़ा बनता है. फिर वैसे कल से वो है लॉकडाउन है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे आप लोग. तो आज से पढ़ें. अच्छा चलें, बर्जीज मैनुअल तो पढ़ लें. थोड़ा सा ही है, बस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है. बर्जीज मैनुअल इंटरेस्टिंग है वैसे भी. ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा हम वैसे पूरा तो पढ़ना है ना, इसके वॉल्यूम से. चलें, ये नहीं पढ़ाऊंगा. दिस इज वेरी सिंपल वन. चल थोड़ा सा. सो बर्जीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी, दैट इज अ बुक. सैम ब्रुक का आप बुक्स पढ़ते हैं आप लोग साइंस की? दूसरी तो मुझे पता नहीं पड़ता. साइंस की भी सिर्फ स्लाइड्स पढ़ते हैं, पेपर देते हैं बस. कुछ ख्याल करें अपने साथ, कुछ ख्याल करें. प्लीज डू नॉट डू दैट. बुक से तो क्वेश्चन किया गया. मेरे वाला स्लाइड से पढ़ोगे तो फेल हो जाएंगे आप. फिर बुक से नहीं होगा. माइक्रोबायोलॉजी इतनी सिंपल है, मुझे नाम भूल गया. इतनी सिंपल है माइक्रोबायोलॉजी, मतलब इसमें फेल नहीं हो सकेंगे. बट अगर कोई जानबूझ के होना चाहे तो हो जाएगा. क्यों बोला? अगर मेहनत भी फेल होने के लिए करें. तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि बुक्स पढ़ते हैं, जिसका जवाब मुझे पता है कि आप नहीं पढ़ते. बट स्टिल मैं कुछ बुक्स के नाम बताना चाहता हूँ जो मुझे मुझे लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए नाम उनके. सैम ब्रुक. This is SAMBROOK. Sam Brook. Are you familiar with that name? सुना है? अच्छा, ऐसा बता दें कि आपने अभी तक जो अपने कोर्सेज पढ़े हैं उसमें से किसी बुक का नाम बता दें. कौन सी? हेलन मिलर एंड हार्ले. वो कब पढ़ी थी? ओके, इसके अलावा और ये माइक्रो में मैंने एक बुक दी है आपको, नेस्टर की माइक्रोबायोलॉजी ह्यूमन पर्सपेक्टिव. इसके अलावा प्रेस्कॉट ले सकते हैं आप, मेरे पास पढ़िए, ले लीजिएगा. अगर किसी को चाहिए ब्लैक ले सकते हैं, टोटोरा फंकी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. सैम ब्रुक, इसके बारे में कहते हैं कि दिस इज द बाइबल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन regarding the protocols that are required in the molecular biology, from the extraction of DNA to the gel, and from the extraction of DNA to the recombinant enzymes का usage, PCR, amplification, महरीन ऊपर रखने इसको फटाफट. डॉट इस पे लिखें. चलो देख लो. Sam Brook contains all the protocols which are required for the molecular biology, starting from the DNA extraction
किस किस मेथड से कैसे कैसे ट्रबल शूटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ईच एंड एवरीथिंग, वेस्टर्न ब्लॉक, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी। इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, बहुत बड़ी बुक बनती है। मुझे नहीं पता कि हमारी लाइब्रेरी में पढ़ी है कि नहीं। इफ़ यू गाइस नीड इट एट एनी टाइम, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में पड़ी हुई है। इसके अलावा Burgess Manual of Systematic Bacteriology, it contains all the information of the discovered microorganisms and इसके अंदर कि कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म किस स्पीशीज से है, किस जीनस से है, किस क्लास से है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कल्चर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इकोलॉजी क्या है, उसको हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं सॉइल से। इसके 5 वॉल्यूम हैं बर्जीस मैनुअल के, और इसके बारे में भी ये टेक्सोनोमी की बाइबल का दर्जा रखती है। और इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन इसमें एडेड है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है कि ऑर्गेनिजम्स की इकोलॉजी, उनके मेथड्स ऑफ एनरिचमेंट मेथड पढ़े थे ना हमने, व्हाट इज एनरिचमेंट, तो हाउ वी कैन एनरिच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनरिचमेंट मेथड्स के बारे में, हम कल्चर कैसे कर सकते हैं, उनके कल्चर कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड हैं, हाउ कैन वी आइसोलेट द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर सोर्स। इसके अलावा मेथड्स फॉर द मेंटेनेंस एंड द प्रिजर्वेशन, सारा का सारा डेटा इसके अंदर मौजूद है। इसका है कि जो हमारे पास न्यू एडिशन पब्लिश हुआ है, इसमें जेनेटिक रिलेटेडनेस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन जब अपडेट हुई है। और अगर इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसके अंदर डाटा मौजूद है अबाउट द आर्किया बैक्टीरिया एंड डीपली ब्रांचिंग फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और इसके अंदर जो हमारे पास ये वॉल्यूम 1 के अंदर दोनों डोमेन कवर होते हैं, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। अगर डोमेन आर्किया की बात करें तो इसके सिर्फ 2 फाइलम हैं, क्रेनो आर्कियोटा और यूकैरियोटा, ये 2 फाइलम है इसके अंदर। और डोमेन बैक्टीरिया के जो फाइलम कवर होते हैं वॉल्यूम 1 के अंदर, इसमें हमारे पास फाइलम एक्विफेसी, थर्मेटोवी फाइलम समथिंग, एंड ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव फाइलम हैं जो कि वॉल्यूम 1 के अंदर डोमेन बैक्टीरिया के। इन फाइलम्स को बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, बट यू गाइस शुड हैव इंफॉर्मेशन कि हमारे पास वॉल्यूम 1 के अंदर कौन कौन से फाइलम जो हैं वो डिस्कस होंगे। इसके साथ ये रिप्रेजेंटेटिव जेनरा हैं जो कि इन फाइलम से हैं। और इसमें आपने कौन सा वाला सुना हुआ होगा ऑर्गेनिज्म, आर यू फेमिलियर विद एनी वन ऑफ देम फ्रॉम दिस? नाइट्रोस्पायरा के बारे में शायद आप लोग थोड़े से फेमिलियर होंगे, डेनाकोकस के बारे में हो सकते हैं, एक्विफिक्स के बारे में हो सकते हैं। सो वॉल्यूम 1 के अंदर जो हमारे पास डेटा है दिस इज ऑल रिटन हियर। उसके बाद वॉल्यूम 2 पे जाएं तो वॉल्यूम 2 में हमारे पास प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम है। प्रोटियोबैक्टीरिया के फाइलम की जो क्लासेस हैं, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अभी अभी हमने इकोलाई का पढ़ी थी टेक्सोनोमी रैंक, और उसके अंदर फाइलम उसका प्रोटियोबैक्टीरिया था, और क्लास कौन सी थी? ये लें, यहाँ से देख लें, क्लास उसकी थी गामा प्रोटियोबैक्टीरिया हियर। और स्कर्शिया कोलाई में हमारे पास दिस वन स्कर्शिया जीनस दैट बिलोंग्स टू द क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया। और यहाँ पे काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव जेनरा ऐसे होंगे जो आपने नाम सुने हुए होंगे, जैसे कि सुडोमोनास है, स्कर्शिया है, माइकोकोकस है, एजोटोबैक्टर है, हेलिकोबैक्टर है, कंपाइलोबैक्टर है, निजेरिया है, नाइट्रोसोमोनास है, थायोबैसिलस है। यू शुड बी फेमिलियर विद इट, ये आपको पता होगा इसके बारे में। जो वॉल्यूम 3 है इसके अंदर डेटा मौजूद है डिपेंडिंग अपॉन द G+C कंटेंट। GC कंटेंट क्या होता है? G+C कंटेंट, व्हाट इज दैट? G+C कंटेंट, Rizwan? If we analyze the genetics, the DNA sequence and we analyze the G+C content, और अगर हमारे ये इसमें वो वाले ऑर्गेनिज्म होंगे which are with low GC content, जिनके डीएनए में G+ गुआनिन और साइटोसिन कम है और एडेनिन और थायमिन ज्यादा है, तो इसके अंदर वो होंगे, बट दे आर ग्राम पॉजिटिव। और फाइलम है इसके अंदर बैक्टीरिया का फेमिक्यूटीज, एंड इसके अंदर क्लासेस होंगी क्लोस्ट्रीडिया, मॉलिक्यूटीज एंड बैसिलाई। और क्लोस्ट्रीडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव जीनस है उसमें क्लोस्ट्रीडियम से आप फेमिलियर होंगे, हेलिकोबैक्टीरियम से आप फेमिलियर होंगे, माइकोप्लाज्मा से फेमिलियर हैं, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस से फेमिलियर हैं, ठीक है। वॉल्यूम 4 that would contain the high G+C content और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और फाइलम इसके अंदर होगा एक्टिनोबैक्टीरिया का। और साथ ही साथ जो वॉल्यूम 5 है that would be containing the planktomycetes, spirochetes, fibrobacters, bacteroids and fusobacteria। और इसमें हमारे पास जो फाइलम है these are enlisted here, और जो रिप्रेजेंटेटिव जेनरा हैं उसमें हमारे पास वॉल्यूम 4 में आएगा कोराइनी बैक्टीरियम, इसके बारे में हमें पता है, बिफिडोबैक्टीरियम,
ये हमने कहाँ पढ़ा था? जब मैंने एग्जांपल दी थी प्रोबायोटिक्स की, तो मैंने इसका जिक्र किया था बिफिडोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये सब आपको नाम आपने सुने हुए हो सकते हैं। और साथ ही जो वॉल्यूम 5 है उसके रिप्रेजेंटेटिव जनरा दीज आर इनलिस्टेड हियर एज वेल। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द बर्जीज मैनुअल, एंड बर्जीज मैनुअल में टेक्सोनोमी की पूरी इंफॉर्मेशन हम आगे नहीं पढ़ रहे, डोंट वरी। और और इसके साथ थोड़ा सा ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर हम नॉमेनक्लेचर पे आएंगे, फिर हम उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनोमी में देखेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो करते हैं, और किस तरह से माइक्रोस्कोपिकली ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, नहीं करते। फिर ये कुछ स्ट्रक्चर्स और शेप्स की बात करेंगे वगैरह वगैरह, एंड मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ की बात करेंगे। ये हमारे पास आगे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। ये टेबल एक आएगा इंटरेस्टिंगली, और फिर हमारे पास ये इनडायरेक्ट फिगर्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दैट एंड व्हाट दे आर शोइंग हियर। So this is very interesting chapter, and you guys will learn a lot of things about the bacteria from this chapter. Okay? Yes. कोई सवाल, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? Okay. अच्छा जी, तो आप लोगों की क्लास में चीटिंग का क्या ट्रेंड है? क्विजेस को लेके 2 क्लासेस हैं मेरे पास, ज़ूलॉजी और कोई बताता है नहीं? ये हो नहीं सकता। अच्छा, और बाकी जो ज़ूलॉजी वाले बच्चे हैं जी,
अटेंडेंस के बाद फिर जो नेक्स्ट आपके साथ सेशंस होंगे दे विल बी ऑनलाइन, और ऑनलाइन सेशंस में फिर ट्राई टू बी वेरी अटेंटिव। हाँ अच्छा जी, ऑनलाइन सेशन में 10 मिनट का मार्जिन काफ़ी है या 5 मिनट का क्लास स्टार्ट होने से ज्वाइन करने तक का? 5 करने चले 10 मिनट्स का मार्जिन हम रखेंगे, और फिर उसके बाद मीटिंग जो है वो लॉक कर लिया करेंगे, क्योंकि वो मुझे पता चल जाएगा। आई विल अकोमोडेट, मतलब वो हिटलर टाइप नहीं चलेंगे कुछ, बट स्टिल आई वांट कि आप टाइम पे हैं। बट आई कैन गेस मिनाहिल कि ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ। सर आप वो देखिए ना, स्टार्ट विद ऑल नहीं उसके बड़े तरीके हैं, पिछला सेमेस्टर मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है। तो अच्छा जी, अबिहा बाबर, अशीज नसीम लोधी, Present, sir. सर अभी यहाँ प्रेजेंट। Abiha is present, okay. And Asma Mohammed Mumtaz, Present, sir. Sir, Ashish bhi present hai. Asma Razak, Atika Iftikhar, Yes, sir. Aisha Tahir, Bisma Mehboob, प्रेजेंट सर। सर मैं लास्ट क्लास में भी प्रेजेंट थी, आपने एब्सेंट मार्क किया हुआ है, वो इंटरनेट इश्यूज की वजह से मेरे डिस्कनेक्ट हो गया। बिस्मा है तो बिस्मा प्रेजेंट है, निशान की वाली बुशरा मुर्तजा प्रेजेंट, फारिया फरहान, सर मैं प्रीवियस क्लास की बात कर रही हूँ। कौन बोला कौन? बच्चे आप ऐसा करते जाएं प्लीज, टाइप करते जाएं। हमारे आज स्पीकर जो हैं ये खराब हैं, तो आप ऐसा करें कि टाइप करते जाएं प्लीज, या हैंड रेज, चले हैंड रेज कर लें, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फारिया फरहान, यस शी इज प्रेजेंट। अयाज खान, अच्छा नहीं वो पहला मैसेज। गुलनाज बीबी, Present, sir. okay. Gulnaz, please raise the hand on there. वो एक दफा Present, sir. असल में तो एक हमारे यूनिवर्सिटी के काफी सीनियर टीचर हैं, तो एट दैट टाइम वी वर नॉट अवेयर विद द हैंड रेज ऑप्शन इन द ज़ूम। फर्स्ट वीक था, तो वीडियो मीटिंग हो रही थी, तो जो मीटिंग ले रहे थे उन्होंने कहा भी आप हैंड रेज इसमें कर दें, तो वो सर ने वीडियो में से हैंड so do not do that, you just have to use the option. But Gulnaz Bibi raise the hand. Okay, Hafiza Javeri Akbar. Okay, good. And Jannat Haroon. Jannat, not here. And Maheen Zahra. Okay, and Muhammad Abdullah. Okay, and Muhammad Nabil Hamza. Not here. Rania Hafiz. Okay, and Rimsha Hamid Mahmood. Saad Naim Khan. Saad is not here. Saman Rauf Rame and Sana Liaquat. Okay, and Sherdil Ali Khan. Sherdil, not here. Present, sir. Okay, Sherdil. And Sayyid Tahir Abbas. Not here. Tayyiba Kamar. Wakkar Hussain. Zaim Amjad. Tahir Abbas nahi tha na? Okay, it's good. And ये वाले बच्चे हैं हमारे पास, yes. Theory 2 है, today this is theory 2. Okay, Jannat Rani. Are you there? No. Nazish Riaz. Sir, present too. Umer Rubab. Umer Rubab. Not here. Okay, we'll see you in the next class.